in the Excel. Octave data in the Excel, how we will export and how we will import the Excel data into Octave, vice versa. Both the things. Next is a brief revision of the course. So review of lecture 1 and 2. We will do that 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 9, 10 and 11, 12. We will revise all the lectures. This 12th lecture was basically the extra class, in which we have discussed about the assignment difficulties and other things. So this is a review of lecture number 1. So in this lecture, we have focused that what is the definition of the mechanical system, है ना? तो बताइए जरा क्या definition है, याद है या भूल गए? पहला lecture. What do you mean by the mechanical system? कोई भी बताइए आप में से. ओंकार निगम आप ही बताएं. What is mechanical system? या सूर्याश पटेल बताएं या दीपक कुमार बताएं, कोई भी बताएं. ओंकार निगम, am I audible? Yes, sir. हाँ, what is mechanical Yes, sir. opinion? हाँ, in your opinion. थोड़ा सा रिवीजन ही है. Sir, in mechanical system, we convert input force into output desired work. yes, है ना. So it is the set of physical components. ये physical components थोड़ा word important है. Mechanical system means it is a physical set of physical components. ठीक है. और इनका फंक्शन क्या रहता है? Which can convert the input motion, है ना, which can convert the input motion or the input force into the desired motion or the desired force. The basic definition है desired force. और ये definition यहाँ होगी, मैं आपको दिखाऊं. A mechanical system is a set of physical components that convert an input motion or force into a desired output motion or force. Okay, so this is the definition or meaning of the mechanical system. Physical word is important. Physical components. चलिए, लेक्चर 1 में किया था हमने. What are the elements of a mechanical system? चलिए इसके बारे में बताइए जरा. तो कुमार आप बताएं. क्या क्या होते हैं मैकेनिकल सिस्टम के? There are basically only 3 elements, है ना? One is input, one is process, one is output. 3 ही चीजें होती हैं ना. तो इसको हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं. Elements of the mechanical system having some input, some process. This piston connecting rod, crank arrangement. Fuel ignites, causing gases to expand, which force the piston down. So this is the input force. Crank and slider mechanism converts reciprocating motion into force and rotary motion. So it is the process. And cranked shaft rotate. So this is the output. So these are the 3 basic elements of the mechanical system. Some examples of the mechanical system we discussed. कुछ बता दो, है ना. कुछ mechanical system के examples आप list out करिए जरा, बताइए one by one. दीपक. Spring mass system. हाँ, spring mass damper system, very good. और बहुत सारे पढ़े हैं आप. Simple pendulum हो गया, trolley हो गया. हाँ, pendulum is also mechanical system, very good. और अभी आपको रेलवे ट्रॉली हो गया. बॉयलर के बारे में बताया होगा आपको. बॉयलर इज ए मैकेनिकल सिस्टम. अनुदीप श्रीवास्तव जी ने क्या बताया आपको? बॉयलर, पावर प्लांट्स, विंड मिल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स. बेसिक कमांड्स लाइक CLC, which is for clear screen, clear which is for clearing the variables, and clear all which is
for clearing all the variables that we discussed in lecture 1. How to create row vector? Row vector कैसे बनाते हैं? 1, 3, 5, 7. If I write in this way, then x will be a row vector and the size of the row vector is 1/4. I can also write it in this way, 1 space 3 space 5 space 7. So this is and these are both same. No difference. ना या तो space रखिए बीच में या comma रखिए. So in this way we can create the row vector, and how we can create the column vector? That y equal to 1 semicolon 3 semicolon semicolon 5 semicolon 7 and semicolon means it is the end of the row. So first row ended here, second row ended here, third row ended here, this is the fourth row. So size of this vector is 4/1, so it is a column vector. Okay. Now next is creation of the matrices. So how can we create the matrix? Let M is a matrix. We can define 1, 2, 3. It is the first row. 4, 5, 6. It is the second row. 7, 8, 9. Which my space hai. Or you can place comma. Then it is a matrix of size 3/3. So we can create matrix. Element indexing. So there are two types of the indexing. One is element indexing and one is IJ indexing. One is IJ indexing. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं इनको पहले. सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनाया, लेट x इज ए मैट्रिक्स और m इज ए मैट्रिक्स. 1, 2, 3, 100, 102, 105, -3, -5, -11. Let this is a 3/3 matrix हमने बनाया. Now I want to call this 105. So by element indexing, how can I call it? बताइए कोई भी आप में से कैसे कॉल करेंगे इस 105 को? एलिमेंट जैसे r जैसे एक वेक्टर डिजाइन किया हमने. हाँ, m इज a वेक्टर इसी वेक्टर से बताओ. m डिजाइन किया तो सर उसमें जो i लेंगे वो इंडेक्स शो करेगा. जैसे m4 तो m4 एलिमेंट ऐसे कॉल करेंगे. इस 105 के लिए क्या लिखेंगे ये बताओ. इस 105 को हमें कॉल करना है. 105 के लिए सर m लिखेंगे, r और पहले रो लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसकी कॉलम 3 2,3 2,3 लिखेंगे. तो वो एलिमेंट इंडेक्सिंग नहीं है, वो तो रो और कॉलम इंडेक्सिंग है. वो तो आप पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहे हो, है ना. आपने जो बताया है ओंकार, वो पॉइंट नंबर 8 का बताया है, रो कॉलम इंडेक्सिंग, है ना, जिसमें आपने रो नंबर 2 ले ली और कॉलम नंबर 3 ले लिया. तो ये आपने बता दिया कि इसको हम ऐसे कॉल कर सकते हैं 2,3 से, है ना. तो ये जो बताया आपने ये आईजे इंडेक्सिंग है, पॉइंट नंबर 8. और मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट इंडेक्सिंग. तो एलिमेंट इंडेक्सिंग से कैसे करते हैं? देखो, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां. तो ये 105 कौन सा एलिमेंट है बताओ? इट इज 8th एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. Total there are 9 elements, so it is 8th matrix. So I can call it by m bracket 8. So this is element indexing. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. यस. हाँ. So m bracket 8 करेंगे तो एलिमेंट इंडेक्सिंग और m bracket 2,3 करेंगे तो वो फिर हो गया रो कॉलम इंडेक्सिंग. ठीक है. So this is a brief summary of lecture number 1. So now I am moving to lecture number 2. So in the lecture number 2, we discussed the dot operator. Suppose I am having a x matrix 1, 2, 3, and I am having a y matrix 4, 5, and 6. If I do a command z equal to dot star y, what will be the output? बताइए anyone, क्या आउटपुट आएगा? बताते रहिए, आउटपुट बताते रहिए, क्या आउटपुट आएगा? x डॉट स्टार y. सर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा. हाँ, तो आंसर बताइए, बस आउटपुट बताइए आप क्या आएगा. सर 4, 10, 18. वेरी गुड, है ना. 1 4 जा 4, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18. So the output will be 4, 10, 18. ठीक है. और यदि मैं इसी कमांड को ऐसे लिखता
Z1 इक्वल टू X स्टार Y, तो क्या होता? सर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता क्या मैट्रिक्स आंसर से जो आता? चलता। क्या आंसर आता? आंसर क्या आता बताइए? कुछ भी आंसर नहीं आता, इट विल रिजल्ट इनटू द एरर। इसमें एरर आ जाती क्योंकि इसका साइज 1/3, इसका साइज 1/3, 1/3 में 1/3 का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, है ना? नॉट पॉसिबल एज पर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉसिबल है जब पहला मैट्रिक्स m/n हो, दूसरा मैट्रिक्स n/p हो, इसके कॉलम और इसके रो बराबर होते हैं, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलता? एरर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉट ऑपरेटर। Who commands means what are the variables in the memory? Whose means whose means all the variables with some uh, what memory they are occupying. Zeros command generates generate a matrix whose all elements are zero. Okay. Ones command generate the matrix whose all elements are one. I commands generate a identity matrix. The diagonal is one, rest elements are zero. Okay. This is generated by I command. Diagonal commands extract the diagonal elements. Suppose the name of this matrix is capital X, and I am writing y equal to diagonal of X. So it will give me the output 1, 1, 1 in a matrix. So diagonal command extracts the diagonals from the element, from the matrix. AVS command is converts all the values positive. If I write AVS of -5, then the output is +5. Plot commands plot the two variables x, y. अब ये वेरिएबल्स आपके स्केलर भी हो सकते हैं, वेक्टर भी हो सकते हैं, मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। यदि ये मैट्रिक्स हैं तो कॉलम बाय कॉलम प्लॉट होता है ना? जैसे एक मैट्रिक्स है उसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। मान लीजिए इसका नाम, मैट्रिक्स का नाम पहले का ए है, दूसरे का नाम बी है, और हम इसको करते हैं प्लॉट ए, बी। तो इसका मतलब है दिस कॉलम विल बी प्लॉटेड with respect to this column, second column with second column of the other matrix, third column of first matrix with third column. So you will get three plots in the window. You will get three plots because there are three columns. So this plot command title, you can provide title. आप लोगों ने assignment में use किया है इसको। X level, X axis पे क्या लिखना है उसके लिए Y level, legend Y आपने use किया है ना? If there are so many plots, then you can define a legend. Hold down commands आपने यूज करी है, पुराने वाले प्लॉट्स डिलीट ना हो। सील कमांड्स क्या करती है? सील 3.1 will give you 4, है ना? सील of 3.8 will also give you 4. Floor means floor of 3.1, floor of 3.1 will give you 3, and floor of 3.8 will also give you 3. Round command 3.1 will give you 3, 3.8 will give you 4, है ना? उसी तरह से फिक्स सम टोटल करने के लिए है, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए है, मीन निकाल सकते हैं किसी डाटा का, वो मैट्रिक्स के अंदर है, मीडियन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं लिन स्पेस कमांड से। दो पॉइंट्स के बीच में आप जितने पॉइंट्स चाहें उतने पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। किसी रो को डिलीट कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करोगे जरा बताओ, क्या कमांड होती है डिलीट करने की? एनीवन? देखो, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है एक्स, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो इस तरह से 2/5 का मैट्रिक्स है, और मान लो मैं इस सेकंड रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे डिलीट करेंगे, क्या कमांड लिखेंगे? आई विल राइट एक्स, कौन सी रो है? सेकंड रो। कौन सा कॉलम है? ऑल दी कॉलम्स। तो 2 कोलन 2 कोलन इक्वल टू ब्लैंक।
तो वैसे ही करने से सेकंड रो डिलीट हो जाएगी, पहली रो बचेगी. So it is row deletion. Similarly, you can do column deletion. You can edit the element, edit a row, edit a column. ये सारी चीजें हमने करी थी, है ना, मैट्रिक्स के साथ हमने प्ले किया था इन द लेक्चर नंबर 2. Embedding of two matrices, दो मैट्रिक्स को यदि embed करना है तो आपने embed किया है. जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो आप पहले वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड, सेमीकोलन दूसरे वाले इक्वेशन की राइट हैंड साइड, इन दोनों को आप क्या कर रहे थे, एम्बेडिंग कर रहे थे दोनों. यू कैन एम्बेड, यू कैन रिशेप. किसी मैट्रिक्स का साइज बदल सकते हो, जैसे कि मान लीजिए 2/10 है और आप उसे 5/2 करना चाहते हो, यू कैन डू इट. ट्रांसपोज कर सकते हो, रो एंड कॉलम विल बी इंटरचेंज. So this is all about lecture number 2. Now I am moving to lecture number 3. Plotting of many straight lines, है ना, उसमें लीजेंड भी प्रोवाइड किया था, सर्किल प्लॉट किया था हमने, पोलर कोऑर्डिनेट्स x = r cos थीटा, y = r sin थीटा. सप्रेस ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर सप्रेस ऑपरेटर होता है? सेमीकोलन ऑपरेटर इज नोन एज सप्रेस ऑपरेटर. क्लोज फिगर कमांड, टर्मिनेशन ऑफ द कमांड. टर्मिनेशन के लिए कौन सी कमांड होती है? सही है, कंट्रोल सी. कंट्रोल सी. अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सेमीकोलन इज सप्रेस, टर्मिनेशन इज कंट्रोल सी. इनवर्स के लिए INV कमांड होती है, आइगन वैल्यूज के लिए EIG होती है ना. आइगन वेक्टर भी उसी से निकल जाते हैं. जैसे आप कोई मैट्रिक्स है आपके पास सपोज x और आप इसकी आइगन वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो आइगन वैल्यूज x कर देंगे तो आइगन वैल्यूज दे देगा. और यदि आप आइगन वेक्टर्स भी निकालना चाहते हैं तो इसको फिर आउटपुट में ले लीजिए, इधर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, है ना. तो यहाँ पे कोई दो चीजें हो सकती हैं A B. तो फर्स्ट वैल्यू हो गई आइगन वैल्यूज और सेकंड वैल्यू हो गई आइगन वेक्टर. तो इस कमांड के थ्रू हम दोनों चीजें कर सकते हैं. मैजिक कमांड सिंपल है, सारी कॉलम्स का टोटल, सारी रोज का टोटल, ऑफ डायगोनल मेन डायगोनल दोनों का टोटल इक्वल आता है. मैजिक कमांड्स. वेक्टराइजेशन, यदि x के अंदर 28 वैल्यूज हैं और मैं लिखता हूँ y = 3x तो y के अंदर भी 28 वैल्यूज हो जाएंगी, हैं. यदि x के थीटा के अंदर 29 वैल्यूज हैं और मैं लिखता हूँ y = sin थीटा, वो थीटा के अंदर 29 है तो y के अंदर भी 29 है. दिस इज वेक्टराइजेशन. एडिटर प्रोग्रामिंग हमने करी थी, फाइल्स बनाई थी हमने, लूप्स यूज करे थे, फॉर लूप वगैरह, जिसकी हेल्प से हमने पास्कल ट्रायंगल, है ना, नेस्टेड लूप भी यूज किए थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स प्लॉट किए थे, सॉल्यूशन ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन किया था हमने with the four unknowns. So this is all about the lecture number 3. I am moving to lecture number 4. Symbolic toolbox, जिसके द्वारा sims कमांड होती है, जिससे हम sims AB करते हैं यदि हम, तो हम A और B पे काम कर सकते हैं, है ना. बिल्कुल उस तरह से अलजेब्रिकली हम किस वर्क करते हैं. printf कमांड प्रिंट आउट करने के लिए यूज होती है, रिजल्ट्स को प्रिंट करने के लिए यूज होती है ना. इसका सिंटैक्स होता है ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमा कॉमा एक और कॉमा और यहाँ पर वेरिएबल का नाम, है ना. इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, %d लगाते हैं, %d की जगह पर b आता है, ठीक है. और इसी कमांड में यदि आप /n यूज करते हैं तो नेक्स्ट लाइन हो जाती है, और /t यूज करते हैं तो आप एक स्पेस जनरेट हो जाता है, ठीक है. डिफरेंशिएशन थ्रू ऑक्टेव, हमने डिफरेंशिएशन किया था, है ना. नेक्स्ट लाइन बता चुका, स्पेस बता चुका. डिफरेंशिएशन के लिए DIFF कमांड होती है, इंटीग्रेशन के लिए INT कमांड होती है, ये सब हमने यूज किए थे. नेस्टेड लूप किया था हमने यूज और पास्कल ट्रायंगल बनाया था, है ना. हमने करीब 3 तरह के आउटपुट किए थे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 लाइक दिस, और एक लिया था 1 1 2 1 2 3 कुछ इस तरह से, और एक हमने लिया था बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला, है ना, नेस्टेड लूप. So this is lecture number 4 finished. Now I am moving to lecture number 5. So Pascal triangle, Pascal triangle is basically the binomial coefficient. So you can write in this way: 0C0, 1C0, 1C1, 2C0, 2C1, 2C2 and so on. तो उसके लिए binomial coefficient निकालने के लिए you are having NC Husek and binomial coefficient, है ना. The scope of this command is broad as compared to NC Husek, ठीक है. फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं या फिर आप लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 7. इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए, कोई भी आपको. जब मैं कोई कमांड लिखता हूँ ऑक्टेव में फैक्टोरियल 7, व्हाट विल बी द आंसर? कितना होता है फैक्टोरियल 7 बताइए.
फैक्टोरियल 7 कितना याद होगा आप सबको? 5040 होता है शायद, 5040 मल्टीप्लाई तो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, अभी इसको 7 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन आपको दे देगा। फैक्टोरियल साइज ऑफ द मैट्रिक्स मींस कितनी रो है कितने कॉलम्स हैं उसके अंदर, ये बता देगा। क्रिएटिंग फंक्शन इन द ऑक्टेव, फंक्शन कैसे बनाया जाता है, तो एक कीवर्ड होता है फंक्शन, उसके बाद हमको आउटपुट वेरिएबल O1 O2 O3 जितने भी आउटपुट हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन आउटपुट वेरिएबल्स, और फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम है, सपोज राज इज द नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद हम लिखते हैं इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 और इस फंक्शन को एंड कर देते हैं और उसके अंदर जितना भी सिंटैक्स है हमारा आ जाता है। दैट इज फंक्शन। प्लॉटिंग ऑफ द सर्कल थ्रू इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो हमने कार्टेशियन से भी प्लॉट किया था और पोलर से भी प्लॉट किया था। आइडियल मास हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द आइडियल मास? आइडियल मास इज अ मास in which the elastic component is 0 and the damper component is 0, ठीक है ना। तो उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी है और ना ही उसके अंदर कोई डैम्पिंगनेस है। सिमिलरली आइडियल स्प्रिंग which is having no mass, जिसका कोई भी मास नहीं है, which is weightless and it is also not having any damping effect. Ideal damper which is not having mass and the elasticity, it is the ideal damper. Then we discussed mathematical modeling of the mass. So mass की mathematical modeling हमने बनाई थी md square x divided by dt square. So this is the mathematical modeling of the mass. और उसके बाद हमने spring का mathematical modeling की थी, और that the mathematical modeling of the spring is given by k times x. So k is the stiffness of the spring, so I can write kx, where x is the displacement. So it is the mathematical modeling of the spring. And for damper, there is a damping coefficient c, and dx by dt is the velocity. So c dx by dt is the mathematical modeling for the damper. Mathematical modeling of the total system, we added all the values. The mathematical modeling of the mass md square by x by dt square plus c dx by dt plus kx equal to some force. And if this force is absent, then this component will be 0, and if the external force is present, then it is capital F. If the force is 0, it means it is a natural vibration, and if there is some value of the force is there, then it is a forced vibration. Natural vibration and forced vibration. तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने सॉल्व भी किया था, ठीक है, और ये एज असाइनमेंट भी आपको दिया गया था कुछ वैल्यू चेंज करने के बाद. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 5. नाउ आई एम मूविंग टू लेक्चर नंबर 6, फंक्शन क्रिएशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डाटा एनालिटिक्स. डाटा एनालिटिक्स के अंदर हमने रैंडम नंबर जनरेट करी थी जो कि किसी एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करती थी, ठीक है, और फिर एक्सपोनेंशियल कर्व का मीन मीडियन मोड भी हमने चेक किया था, है ना. उसी तरह से हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व के द्वारा भी वैल्यू जनरेट करी थी और उनका भी मीन मीडियन मोड हमने चेक किया था. उनके हिस्टोग्राफ भी हमने ड्रॉ किए थे और इसके लिए एक अलग से पैकेज यूज किया था, जिस पैकेज का नाम था स्टैटिस्टिक्स, पैकेज लोड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. यदि हमें नई फिगर बनाने हैं, फिगर 1 फिगर 2 की तरफ से बना सकते हैं, और एक ईजेड प्लॉट है, किसी भी फंक्शन का शेप देखना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने लिखा ईजेड प्लॉट, सपोज इलिप्स की इक्वेशन होती है या पैराबोला की इक्वेशन होती है, y square equal to 4ax, then I can write y square minus 4ax equal to 0. So if I use this left hand side in the within the comma, then it is y power 2 minus 4 multiplied a multiplied x. For if I have to define this a, let a equal to 5, then it is 4 5 are 20, so it is y square minus 20x. So this EZ plot will draw a parabola. You can check the shape of this function. इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली पैराबोला या सर्किल या एलिप्स किसी भी फिगर को ड्रॉ करके देख सकते हैं. This is about lecture number 6. I am moving to lecture 7. Solution of the ordinary differential equation. We have discussed problem 1, in which we have taken x, y. It is a first order differential equation. तो इसको हमने
ऑक्टेव में सॉल्वर से ही ODE 45 solvers. We have solved this problem. Problem 2, which is minus 2x cube plus x minus y, and problem 3 is the pendulum motion. So it is md square theta by dt square c theta by t plus mg by l sin theta. And different solvers, ODE 45, ODE 23, and also other solvers are also there. Conversion of the second order into first order. ना, ये मैंने अभी एक्स्ट्रा क्लास जो ली थी संडे में, उसमें भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया था कैसे सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं. So this is all about the lecture number 7, and now moving to lecture number 8. In lecture number 8, we played a quiz. The quiz was based on the Octave programming, and there were around 16 questions in this quiz. Solution of the second order differential equation for the pendulum motion. We performed this by the ODE for 23 solver and 45 solver. Solution of the second order differential equation for spring mass and damper system. We focused on the solution of this, how to give the command in the editor window for solving this type of second order differential equation. Practical session with Octave. We have done practical session with all of our lectures. Lecture 1, 2, 3. Everywhere we perform practical sessions with the Octave 6.3. We discuss assignment number 3 in lecture number 8, and queries session also we done. So now I'm moving to lecture number 9. So we played a second quiz. And our first quiz was based on the Octave programming, but second quiz was based on the design of mechanical systems and differential equations, DE and Octave. So there was a combined quiz which were focusing mainly on the design of mechanical system and differential equation. Some questions was also there. There were around 22 questions in this quiz. Solution of the second order differential equation for the pendulum motion by the solvers. स्प्रिंग मास टेम्पर में फिर अगेन कोई प्रॉब्लम आई होगी तो अगेन डिस्कस किया होगा ये हमने उसमें. प्रैक्टिकल सेशन विद ऑक्टेव 6.3 असाइनमेंट 3 क्वेरी सेशन. So this is lecture number 10, in which again we played a third quiz. So that third quiz was based on the finite element methods and finite element analysis and stress analysis. We discussed one-dimensional element. So the examples of the one-dimensional elements are bar, beam, truss. These are the columns. These are the examples of the one-dimensional. For the two-dimensional finite element, we use a triangular element and we use a rectangular element. For three-dimensional finite element, there is an element known as tetrahedron. The simplest element is tetrahedron. Elemental equations we write according to FEM. Discussion on how to submit assignment in Google form, on the Google form. I am happy that around 35 students have submitted the assignment. 35 students submitted the assignment till now. मैंने अभी morning में check किया था Google form. Around 35 students have submitted. Still there are 11 students left who have not submitted the assignment. So I request all the remaining students to submit so that their internal assessment can be done and certificate and other marking can be done in their favor. So total registration we got for this course was 46. Initially 43 थे, but 3 students again increased हुए थे, so it was 46. And out of 46, 35 have submitted the assignments. And around 33 have also given the feedback. 13 students are still remaining for the feedback. The remaining are again advised and requested to submit the feedback, because feedback is very important. How to run the course in the future, and what are the problems, what are the weaknesses of the course, that should be highlighted so that they can be improved in the further courses for your juniors. Practical session. So this is lecture number 10. Now I am moving to lecture number 11. There is a discussion on the quiz, है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था उस समय क्विज खेलते तो हमने क्विज को दोबारा से डिस्कस किया था. अगले दिन कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन थे, है ना. ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ये एफईएम के अंदर हमने बनाया था. ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स यूजिंग ऑक्टेव, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया था.
कि आप इसे खुद बनाइए, तो उसमें लूपिंग का यूज करना था, बाय यूज ऑफ लूप, सिंपल लूप्स और नेस्टेड लूप यू कैन यूज दिस, है ना, सिंपल लूप से हो जाएगा। We discussed a test case example for the spring assemblies, ना कुछ इस तरह का हमने एक एग्जांपल लिया था। So many springs, first spring stiffness K1, second K2, second K3, then we generate the global stiffness matrix. We also calculated the reaction forces at the supports, है ना, there were fixed supports, so reaction forces at the supports, and we also calculated the local forces. So we do the force analysis, displacement analysis, solution with the FEM concept, and we also verify the equilibrium of the spring model, है ना? So the summation of all the forces, we verified that it was coming 0. It means the system is in equilibrium. Practical session with Octave 6.3 and assignment 6 we discussed. So I'm moving to lecture number 12. So lecture number 12 was not in the schedule of the course. It was a Sunday. So we conducted an extra class because most of the students are finding difficulties in the assignments. So this was basically an extra class on Sunday. We discussed the difficulties in all the assignments. Doubt clearing session was there, and importance of the feedback was also suggested to the student. So this is all finished, and this is the lecture 13 in which I am giving you the brief revision of the course. You know, the lecture 13 is still continuing. So this was the problem that we discussed for the global stiffness matrix, displacement of the nodes, global nodal forces, and so this is the end of this course. Very much. If you have any query, you can ask. But one thing is remaining. I have to tell how to take the import and export the data from Octave to Excel and Excel to Octave, है ना, उसको मैं अभी Octave विंडो से बताऊंगा। बाकी ये PPT वाला काम अभी हमारा finished है। So I am now stop sharing this, है ना, अभी Excel Octave विंडो को मैं शेयर करूंगा और वहां पे I will discuss, और मैं कुछ आपको प्रोग्राम्स भी भेजूंगा जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के प्रोग्राम्स हैं जिनमें लूप लगी हुई है ऑलरेडी, है ना, जैसे आपको लूप लगाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, कैसे स्टिफनेस मैट्रिक्स ग्लोबल बनाएंगे, तो बहुत सारे मेरे पास प्रोग्राम्स हैं FEM के रिलेटेड में। तो आई विल सेंड यू एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, जिप फाइल भेज दूंगा मैं, तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि 2D एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि 2D एलिमेंट्स पे जब काम करते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा डीप में लगाना पड़ता है। So I will send you the programs for the 1-dimensional also, 2-dimensional and 3-dimensional also, how to convert a system into global stiffness matrix. And once the global stiffness matrix is ready, then all the displacement and stress analysis can be done. So now I am sharing you the Octave window. Yes, Octave window is visible. Octave window is visible to all of you. Response कर दीजिए, आज तो लास्ट क्लास है। यस सर। ओके है ना, तो बस 2 मिनट का समय और लगेगा। सर ये साइड में सर जो टास्क वाली जो रखा है ना, कमांड हिस्ट्री वगैरह, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में और कर दीजिए, जिससे कमांड विंडो थोड़ी जूम हो जाए। थोड़ी और बड़ी कर दूं? यस सर। है ना, मैं जितनी बड़ी हो जाए उतनी बड़ी कर देता हूँ। अब ठीक है, अब तो काफी है। यस सर, अब सही है। ओके, तो चलिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। मान लो मुझे एक वेरिएबल बनाना है, सपोज मैं बनाना चाहता हूँ 8/10 का, ठीक है, तो कौन सी कमांड से बनाऊं बताओ, आप ही लोग सजेस्ट करो। एक मुझे 8/10 का मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे बनाऊं? सजेस्ट, ओमकार आप सजेस्ट करो, नंदी सजेस्ट करें, कोई भी सजेस्ट करें। एक सिंपल कमांड दूं और 8/10 का मैट्रिक्स बन जाए। सर I810 ब्रैकेट में 8,10 ये कहना चाह रहे हो? यस सर। तो देखिए 111 आ गया, लेकिन
8/8 स्क्वायर में तो ले लिया, बाकी सब 0 हो गए, है ना। तो मैं कुछ ऐसा मैट्रिक्स चाहता हूँ ओंकार जिसमें कुछ अच्छी खासी वैल्यूज हो, है ना, भले ही वो डेसिमल में हो। सर रैंडम पे बनेगी, रैंड आई वेरी ऑफ गुड, 8 हाँ, तो। रैंड कमांड से बन जाएगा, है ना। रैंड 8 कर देते हैं, रैंड 8 ना। और इस मैट्रिक्स को स्टोर कर लेते हैं सपोज एक्स में, है ना, एक्स ये हमने स्टोर कर, ठीक है। तो रैंड कमांड से हमारा ये वेरिएबल स्टोर हो गया यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा बेटर मैट्रिक्स बना लेते हैं हल्का सा। मैं बनाता हूँ y इक्वल टू रैंड आई, इंटीजर्स आ जाएंगे, और वो इंटीजर्स 100 से छोटे हों, सारे इंटीजर्स, मतलब 1 से 100 के बीच में हो, और मुझे मैट्रिक्स मिले 8/10 की, 8/10 की मैट्रिक्स मिले, है ना। रैंड आई हमने पढ़ी होगी कोर्स के दौरान। तो इसका मतलब है कि 100 से छोटे इंटीजर्स होंगे, ऑल विल बी इंटीजर्स, देयर इज नो डेसिमल वैल्यू, एंड द मैट्रिक्स साइज इज 8/10। सो आई एम नाउ, देखिए आपके सामने 8/10 का मैट्रिक्स अवेलेबल है, और ये कुछ अच्छा ठीक सा मैट्रिक्स दिख रहा है, राइट। अब मान लीजिए मैं इस मैट्रिक्स को एक्सेल में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, अपने एक्सेल में। ये कौन से वेरिएबल में है, वाई वेरिएबल में, ठीक है। तो देखिए वाई वेरिएबल पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिकिंग करेंगे, है ना, डबल क्लिक करिए, तो डबल क्लिक करते ही आप पहुंच गए कहां पर, वेरिएबल एडिटर में पहुंच गए। ये देखिए यहाँ पे 4 विंडो होती हैं, एक होती है कमांड विंडो, एक होती है डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है वेरिएबल एडिटर, और एक होता है एडिटर। तो आपने कमांड विंडो यूज किया ही किया है, जो अभी हमने मैट्रिक्स बनाई है वो कमांड विंडो पे बनाई है, जहां हम कमांड देते हैं। एडिटर प्रोग्रामिंग आपने की है जहां आपने फाइल्स बनाई हैं, इसका सर्किल्स प्लॉट किए हैं आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं, फंक्शन क्रिएट किए हैं, दैट इज एडिटर। एंड वन मोर थिंग इज वेरिएबल एडिटर। तो ये देखो वाई वेरिएबल का नाम है, और ये उसकी वैल्यूज है, तो आपको एक तरह से कुछ एक्सेल टाइप की ही विंडो दिख रही होगी, एक तरह का एक्सेल सा ही दिख रहा है ना, कुछ लगभग लगभग सा। तो आप इसको एक्सेल में यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। कई तरीके हैं, मान लीजिए मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैंने किया कॉपी कंट्रोल सी से, और मैं चला गया अपने एक्सेल फाइल में, और एक्सेल फाइल में जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो क्या आपको एक्सेल विंडो दिख रही है? आपको तो नहीं दिख रही होगी, आपको तो एक्टिव दिख रही होगी ना, क्यों? यस सर। हाँ, तो मैं अभी न्यू शेयर करके आपको एक्सेल विंडो दिखाता हूँ, ठीक है। क्या आपको एक्सेल विंडो दिख रही है? यस और नो? देखिए ये इसका शीट 1 है, ये शीट 2 है, शीट 2 ब्लैंक है। एक्सेल विंडो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बताओ पहले, यस और नो? यस सर। नो सर, एक्सेल विंडो हाँ, नहीं दिख रही। नहीं अब दिख दिखी, रही अब है, दिखी, अब अब दिखी। देखिए। अच्छा, थोड़ा टाइम लेता है नेट का, कुछ टाइम तो लगता ही है ना दिखाने में। सर थोड़ा कानपुर में सर नेट भी स्लो है। हाँ, स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड यदि अच्छी है तो जल्दी आ जाएगा, थोड़ा टाइम ले लेगा। तो अभी एक्सेल विंडो इज विजिबल। तो अब देखो मैंने कंट्रोल सी कर रखा है, मैंने यहाँ कर दिया कंट्रोल वी। आपका देखिए 8/10 का मैट्रिक्स आ गया ये देखो 8 रो हो गई, और ए से लेके जे तक आपके 10 कॉलम्स हो गए। तो एक तरह से हमने ये डाटा क्या कर लिया, यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया एक्सेल के अंदर, है ना। तो कोई भी डाटा होगा वो वेरिएबल एडिटर में, यदि वो वेरिएबल में स्टोर है, वेरिएबल एडिटर के माध्यम से आप उसको ले सकते हैं, इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब मान लीजिए यहाँ पर हम कोई डाटा बना लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा है, तो मान लीजिए मुझे एक्सेल में चलो 19 की टेबल बनानी है, तो मैंने लिखा 19, ठीक है। 19 के बाद मैंने लिख दिया 38, 19 टू द 38, और फिर मैंने इसको प्लस साइन बना करके ड्रॉ कर दिया, 19 की टेबल बन गई। इस तरह से मान लो मुझे बनानी है 20 की टेबल, मैंने क्या किया, यहाँ से 19 और 20 को हाईलाइट किया, और इसको मैं यहाँ तक ले गया, ये मैंने 28 तक कर दिया, ठीक है। अब 19 से लेके 28 तक की टेबल बन जाएगी, और मैं अब इसको जो है ड्रैग आउट कर देता हूँ, है ना।
मैं इसको क्या कर देता हूँ, ड्रैग आउट कर देता हूँ, राइट। तो 38 और ये कितना हो गया 40। बस अब इसको एक फॉर्मूला टाइप का मिल गया, मैंने इसे ड्रैग आउट किया, ये 38 से लेके यहाँ 28 में 56, 27 में 54। बस अब यदि मैं इसको ड्रैग करूंगा, देन आई हैव द टेबल्स फ्रॉम 19 to 28 इन द एक्सेल विंडो। बताओ और आगे तक ले लेते हैं। दिख रही है आपको 19 से 28 की टेबल? यस और नो? यस सर दिख रही है। 28 तक का टेबल मैंने बना दिया है, और 19 10 जा 190, 19 11 जा 209, 19 12 जा दिस, 19 14 जा 19 15 जा हो गया ये। तो इसमें कितनी रो हो गई हमारे डाटा में, कितनी रो हैं? 15 जा, मतलब 15 रो हो गई, और कॉलम कितने हो गए 10। तो इस पूरे को मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी, ये मैंने कर दिया कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिया, और मैं अब आपको शेयर कर रहा हूं ऑक्टेव विंडो, ठीक है, इसको मैं स्टॉप शेयर कर देता हूं, और नाउ आई एम शेयरिंग यू द ऑक्टेव विंडो। सो ऑक्टेव विंडो इज हियर। इस ऑक्टेव विंडो मैं यहां पे कर देता हूं पेस्ट, ये पेस्ट हो गया डाटा। देखो 19 से लेके 28 तक की टेबल दिखाई दे रही है, यस और नो? यस नन्नी कुमार सुन पा रहे हैं? यस सर दिख रही। यस सर। देखो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया ऑक्टेव विंडो में, है ना। मैं इसे डबल पेस्ट भी कर सकता हूँ, आई कैन अगेन पेस्ट इट। ये देखो पेस्ट कर दिया, जो मैंने एक रो खाली छोड़ दी थी उसमें उसने 0 0 ले लिया। अब ये वेरिएबल कौन है, इसका y वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है y। तो अब आप कमांड विंडो पे y को कॉल करेंगे तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स दिखाई देगी, बताओ भाई। 10 तो कॉलम है, लेकिन रो की संख्या तो अब बहुत ज्यादा हो गई। देखो कितनी रो है, रो तो आपकी 24 रो है, इसके अंदर 24 रो है, 24/10। तो चलिए कमांड विंडो पे आते हैं, कमांड विंडो पे कॉल करते हैं y को। देखो y कॉल हो गया, कितने बाई कितने का डाटा है बताओ, y कॉल हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारे पास y आ गया। यदि आप करते हैं ए नेक्स्ट मैट्रिक्स t इक्वल टू y डॉट पावर 2, y डॉट पावर 2, बताओ एरर क्यों आई है, बताओ एरर क्यों? मैंने डबल इक्वल टू कर दिया है, बिकॉज मैंने क्या कर दिया, डबल इक्वल टू कर दिया है, प्रेस एंटर। ये देखिए स्क्वायर हो गए सबके, ठीक है। मान लीजिए मैं एक और लिखता हूं, ए नेक्स्ट मैट्रिक्स b इक्वल टू y इनटू y डैश। बताओ कितने बाई कितने की मैट्रिक्स मिलेगी, y इंटू वाई डैश कितने की मैट्रिक्स मिलेगी? y इंटू वाई डैश पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल होता है a इंटू a डैश, क्योंकि a का साइज यदि 10/12 है तो a डैश का 12/10 हो जाएगा, है ना। 10/12 और 12/10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिफाइंड है, कोई एरर नहीं आएगी, कोई डॉट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो y का साइज क्या है बताओ, y का साइज दिखाते हैं पहले आपको। 24/24 की मैट्रिक्स मिली आपको, y इंटू वाई डैश 24/24 मिली, क्योंकि 15/24 24/15 इंटू 15/24 तो 24/24 आ जाएगा। साइज देख लीजिए, साइज ऑफ y, साइज ऑफ y आपका 24/10 आ गया। तो 24/10 इंटू 10/24 यू विल गेट 24/24, ठीक है। और यदि आप कर देते हैं y डैश इंटू y, बताओ तब क्या साइज आएगा, एनीवन? y डैश इंटू y बताइए क्या आएगा, बड़ा आसान है। देखो y का साइज 24/10 है, तो y डैश का क्या हो गया 10/24, y डैश 10/24 हो गया, और ये 24/10 है, तो 10/24 इंटू 24/10 10/10 आ जाएगा, 240। नहीं 10/10 आ जाएगा, 10/10 का साइज, 10/10। 10/10 का साइज आ गया, देखो 10/10,
ठीक है, ये आंसर वेरिएबल है। आंसर वेरिएबल का साइज देखोगे तो 10 by 10 दिखाएगा, साइज ऑफ आंसर 10। ठीक है, तो दिस इज, मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है आपको कि वी कैन कॉल ए मैट्रिक्स फ्रॉम एक्सेल टू ऑक्टेव एंड वी कैन आल्सो एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑक्टेव टू एक्सेल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय कोर्स, मतलब मेरे कोर्स के बारे में पूरा आज एंड हो रहा है। मतलब एंड वैसे नहीं है, हम और आप जेल में रहे हैं, साथ में हैं। कभी भी आपको इस कोर्स से रिलेटेड किसी कोई और प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कोई मैकेनिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, यू कैन कम टू माय केबिन और यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप, है ना। मेरे से टच में रहिए, है ना, मुझे भेज सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल। चलिए मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सर। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। नंदी कुमार, आर यू लिसनिंग मी? नंदी कुमार नहीं सुन पा रहे हैं। अभी अभी सलील सुन पा रहे हैं? अभी ओंकार निगम आप सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। ओके ओके, तो चलिए अब हमारा कोर्स एंड होता है। कोई क्वेरी हो तो बताइए। कैसा रहा हमारा कोर्स, कैसा लगा आपको, क्या लर्निंग हुई आपको? थोड़ा सा लास्ट में एक दो बातें बोल दीजिए आप अपनी तरफ से, जो भी आपके मन में हो। सर अच्छा लगा, नई नई चीजों के बारे में पता लगा जो चीज पता नहीं थी। है ना, आगे भी हम लोग साथ में रहेंगे और मैं कुछ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स भेजूंगा और आप उनको रखिएगा, आगे आपके भविष्य में काम आएंगे, है ना, देख भी लीजिएगा, आगे भी काम आते रहेंगे। आई विल सेंड यू सम प्रोग्राम्स कलेक्शन। यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, वेलकम, थैंक यू सर वेरी सर मच। सर सर हेलो सर। सर ये हाँ कह रहे थे कि बोलिए। आप सर आपने पास्कल ट्रायंगल वाला लॉजिक देखा था सर? नेस्टेड लूप से बनाया है, सेकंड दूसरा वाला हाँ, पास्कल ट्रायंगल असाइनमेंट में देख लिया, स्टार्टिंग वो पेज। बहुत बहुत अच्छा बना है। वन 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 में बिल्कुल स्पेस भी प्रॉपर आ गया है, मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छा बना है ना। आप, यस मैं उसको एक बार शेयर करके दिखाता हूँ आपको, होल्ड करिए जरा, आपका असाइनमेंट मैं दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा असाइनमेंट आपने सबमिट किया है और मैंने सिंगल फाइल में भी आपसे मंगाया था इसी वजह से। तो वो आपका असाइनमेंट, सर, बस वो जनरलाइज नहीं बन पा रहा वो वाला। हाँ जनरलाइज्ड है, पूरा जनरलाइज्ड है, बढ़िया ऑटोमेटिक है। तो वो असाइनमेंट मेरा है जॉबक फोल्डर में, जॉबक के अंदर परफॉर्मेंस, इसको मैं कर देता हूँ शेयर। यस, हाँ, ओंकार बताइए, क्या असाइनमेंट इज विजिबल टू यू? यस देखिए सारे क्वेश्चंस एक जगह कलेक्ट किए हैं, आई एम क्वाइट हैप्पी, है ना। ओंकार ने बहुत अच्छा काम किया है ना। और लोग भी यदि इस तरह से मुझे भेज भी देंगे, दो चार लोग, तो अच्छा है ना। नंदी कुमार वगैरह, सतीश, है ना, ये जो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा अच्छा किया है कोर्स पर, 10-12 लोग, तो उनका की परफॉर्मेंस, नंदी की भी बहुत अच्छी रही है, सतीश की अच्छी रही है, शाहरुख की रही है। तो मेक एन ऑक्टिव प्रोग्राम टू प्लॉट, ये सब क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस के बाद ये सर्किल का लॉजिक है। और देखो प्लॉट कितना बढ़िया आया है, फर्स्ट क्लास, है ना। प्लॉट दिख रहा है, ये बहुत अच्छी सर्किल्स बढ़िया दिख रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। यस के बाद में ये पास्कल ट्रायंगल, और पास्कल ट्रायंगल का जो आउटपुट है वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर आउटपुट स्पेस वगैरह प्रॉपर है एकदम, है ना। तो सोल्यूशन आ गया पास्कल ट्रायंगल, आपने इसमें तो सेंड तो किया सर सॉल्यूशन के साथ। इसमें पेस्ट किया है ना उस फिगर को, आउटपुट को। सर पेस्ट तो किया था सर उसमें। इसमें हो है, सकता है सर कंबाइनिंग में सर हो नहीं पाया, लगता है इसमें आया नहीं साफ। लेकिन मैंने देखा है, आपको चेक करना है, आपने अलग फाइल उसकी अटैच भेजी है, एक आपने अलग सर से वो भेजी है, वो नहीं दूसरी तो वाली है। फिर से गूगल फॉर्म में चेक करना पड़ेगा फिर आपको। बिल्कुल, असाइनमेंट सेकंड स्प्रिंग मास टेम्पर का, और देखो ये कितना अच्छा आपका आउटपुट आया है। पूरी वैल्यूज आपकी मैट्रिक्स आ गई है, पूरी वैल्यूज डिवाइड हो गई है। सर 0 to 100 लिया इंटरवल। हाँ, और इनका फिर आउटपुट भी आ गया। अच्छा
अच्छा लग रहा है ये असाइनमेंट, बढ़िया लग रहा है। ये असाइनमेंट नंबर 6 के अंदर स्टिफनेस मैट्रिक्स करी है, U1 U2 सब कुछ निकाल दिया है। देखो बहुत बढ़िया, आपने नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन को भी यहाँ पे ट्रीट किया है। सर नेट पे सर हेल्प ली थी सर थोड़ी सी करने में। ये आपने वाटर ट्यूब बॉयलर का असाइनमेंट भेजा है ना, ये और ये फिर सारा कंप्लीट है, बढ़िया। तो इस तरह से असाइनमेंट मुझे और भेज देना कुछ लोग, है ना, एक ही फाइल में सब कुछ भेज देना। तो आई विल यूज दिस असाइनमेंट एज ए मॉडल असाइनमेंट फॉर दिस कोर्स, है ना। थैंक यू, मैं अब स्टॉप शेयर करता हूँ। ओंकार, यू हैव डन गुड वर्क, है ना, वेरी। थैंक यू सर। कैन वी एंड द क्लास नाउ? ना आगे कभी भी कुछ एक वैलिडेटरी फंक्शन हम लोग करेंगे तो सबके मेल एड्रेस मेरे पास है। इस ग्रुप, ये ग्रुप अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको नहीं मिल जाते, ठीक है। वैलिडिटी फंक्शन होने के बाद फिर हम इस ग्रुप को क्लोज कर देंगे, है ना। तो ये सर्टिफिकेट ई फॉर्म में मिलेंगे या फिर वैसे मिलेंगे प्रिंट होके? यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। और वैसे अब तो ऑर्डर आने वाले आ गए हैं कि अब कॉलेज भी खुलने वाले हैं, है ना, ऑफलाइन खुलने वाले हैं, तो हम ऑफलाइन वैलिडिटी फंक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में फिर ये हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और ऑनलाइन यदि यूनिवर्सिटी डिसाइड किया कि ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन जाएगा, है ना। सारे कोर्सेज के एक ही तरह के सर्टिफिकेट बनेंगे, है ना। जो कोर्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने 2-3 कोर्स चलाए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने कुछ चलाए, कंप्यूटर साइंस ने कुछ चलाए, तो सभी का एक ही प्रेस में सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं सारे एक ही तरह से। तो वो नाम और ओके सर। करके आपको मिलेंगे, ठीक है। जब तक ये ग्रुप कंटिन्यू रहेगा, कोई भी बीच में क्वेरी आती है ग्रुप पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप हमारा बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब आप भी फ्री हैं लिखने के लिए, मैं भी फ्री हूँ ना। कई सारे ग्रुप्स में लोग बाउंडेशन लगा देते हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स आर फ्री टू राइट देयर क्वेरीज, है ना। सबमिट द असाइनमेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, सबमिट द असाइनमेंट एंड सबमिट द फीडबैक, ठीक है, प्लीज। कैन वी एंड नाउ? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। नाउ आई एम एंडिंग दिस कोर्स।